Good evening, ladies and gentlemen. I am Aditi Thakur, and before you, I welcome you all to the day 7 of LPU's biggest online 11-day dance carnival, Nupur Utsav, organized by the Department of Cultural Affairs under the aegis of Division of Student Welfare, LPU. Today, amongst us, we have Madam Priya Gupta. Ma'am is an Bharatnatyam exponent. We welcome you wholeheartedly, ma'am. Thank you. Thank you so much. I hope you're doing great as well. Yes, I'm doing good. And to my audience, before we begin with the interactive session today we have planned, I'd like to tell you a few things about ma'am. Ma'am is currently based in Pune, Maharashtra, and has been a disciple of Guru Tiyali Mittar of Jamshedpur. At present, she enriches her expertise being a disciple of Sri Pavitra Bhatt of Mumbai. Ma'am is a university topper at Bharatnatyam certifications from Allahabad and Kolkata. And ma'am has been awarded as the Sangeet Parveen as well as the Sangeet Probor from Bangya Sangeet Parishad Kolkata. I welcome you again, ma'am. Thank you. Thank you so much for having me here. And ma'am, before we begin, this now we've been in a stage of lockdown, in a stage of quarantine for a few months now. It's almost been a year. How is it treating the artist in you? I believe for artists, there is no lockdown. Okay, artists are creative and their minds are always working. Okay, so artists, whenever they see anything, they see the creativity in them. They see it in nature, they see creativity in nature, any art form, any painting, any beautiful things. It's they start creating things, right? Whenever we choreographer or the dancers, when they listen to any music, they choreograph in mind. So there is no lockdown for the artist. Every time we see any beautiful thing, we create a new thing. That's the thing. So, yeah, during lockdown, we face like many difficulties, but still we have to move on, right? There is Indeed. no like stopping and looking behind. We have to move on. I believe that we have to move with the flow. Just go with the flow, and everything will fall into place. Yeah, during lockdown, you can. What I did is I practiced, and it is like always enhancing your skill, right? Whenever you get time, you enhance your skills, and you get me time. Like you can do whatever you want. Like when we were in our regular life, we were in a routine. Like we have to get up by this time, we have to go to office, then this, we have to go when we are in lockdown, there is no limit, there is no routine, right? We can do whatever we want, but which is beneficial to us. So Yes, there is ma'am. no lock. I believe there's nothing like lockdown for artists. जी मैम. We are एक like जैसे with the flow. Yes. एक जैसे सही तरीके से कहा जाता है कि सही समय कभी नहीं होता. Yes, there is no like कभी भी नहीं होता है कि this is the right time to do anything. Like whenever artists think something come to the mind and they want to execute it, we can do it. There is nothing we have to stop now, nothing like that. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और अभी तो मैंने आपकी परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट भी नहीं की है और कमेंट सेक्शन इज फिल्ड विद लव नाउ एंड would request you to kindly begin with your performance that you are waiting for. Okay, sure. Okay, so the first item which I'm going to present now is a Javali. So Javali is basically a Abhinaya piece which a Nayaka or Naika narrates to her Sakhi or beloved or friend. And the expressions of Javali are more physical and faster than the like. There are many Abhinaya pieces like Padam, Kriti, Kirtanam, Ashtabadis. So Javali is one of that, and there are many various moods and expressions being shared here. So here the Javali which I am presenting now. Here the Naika is waiting for her beloved, for the Nayaka,
and the Nayaka hasn't come to meet her. And she has adorned herself from the morning to evening. She's waiting and she has adorned herself, and at last the Nayaka hasn't come. So this is the story. You can see my performance. Okay, Sure. so I'm doing my first performance now.
थैंक यू सो मच मैम, ये इतना सुंदर अभिनय पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सीन एवर, इतना आसान, इतना समझ में आने वाला, इतना एक्सप्रेशंस के साथ भरा हुआ अभिनय. थैंक यू सो मच मैम फॉर परफॉर्मिंग. Thank you. Thank you ma'am, it was a pleasure to see you performing there, and the audience is just loving it, loving the vibe with which you perform, and thank you ma'am. Thank you so much. And now, like, to begin with the interaction, the very first question that came into my mind after seeing the performance is like, how do you perform with such elegance? What is the secret of it? There is no secret behind it. It comes from within. Like when you practice any art form, like I have been practicing this art form since I was age of 4. I started learning Bharatanatyam. Then I'm practicing it, and it comes from within whenever you love something doing, right? I just love it. That's why the feeling, the emotions, everything comes within, right? That's the thing. Great, thank you. Like, and as you said, अभी आपने बोला कि you started learning Bharatanatyam at the age of 4. Yes. ये अपने आप में मुझे शायद किसी अचीवमेंट से कम नहीं लगता है. या कि मैंने बहुत छोटे एज से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू किया है. मेरी पहली गुरु थी है मंदिरा बोस, श्रीमती मंदिरा बोस. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हर. मैं बहुत छोटी थी, एंड आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट हर हार्ड वर्क बिहाइंड मी. शी यूज्ड टू लाइक गिव लॉट ऑफ एफर्ट्स. लाइक वो बहुत मुझे प्रैक्टिस
karana, and she used to take me to various competitions where I can perform and gain my confidence, you know. So she helped me a lot. And then later on she got married, and she got settled somewhere else, and then I went to Tiali Mitar ma'am. And from then, no looking back, and still I'm learning from her. Whatever I'm dancing now, whatever knowledge I have gained, whatever I have achieved till now, is just because of her. Amazing, ma'am. Indeed, splendid it is. Also, now as you said कि आप 4 साल की उम्र से डांस कर रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं, तो यहाँ तक जहाँ आप हैं आज, आपने एक एक वो एज भी क्रॉस की होगी दैट विच इज नोन एज टीनेज Yes. सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीजें काफी इंटर रिलेटेड हैं. यस, मैंने बहुत टेंडर एज से आई स्टार्टेड डांसिंग, बट मैंने बीच में ऐसा बहुत साल रहा है मेरा, आई वॉज नॉट डांसिंग देन यू नो, जब हम टीनेज में जाते हैं, देन कॉलेज, देन स्टडीज, देन जॉब, देन मैरिज, आवर लाइफ इज गोइंग ऑन, राइट? तो देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज नॉट डांसिंग एट ऑल, एंड वो टाइम भी था. देन टीनेज में I was not, I was learning Bharatanatyam. Yes, I was loving it, of course, but I didn't think that time that I'll take Bharatanatyam as a profession now. I'll be performing everywhere, like I'll be dancing till now. मुझे बस अच्छा लगता था. I kept on learning, and then जब बीच में पढ़ाई and everything, I was not dancing, but अंदर ही अंदर ऐसा कुछ था. When I'm missing something, I'm not doing something. ऐसा मुझे हमेशा फील होता था. Whenever I'm studying, कुछ कहीं किसी और को देख रही हूँ डांस करने में, कभी किसी का परफॉर्मेंस, when I used to see somebody is dancing on stage, I used to cry because I am not dancing on the stage. तो वो फेज भी था. देन सडनली लाइक मुझे लगा कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है आई शुड डू दैट, बिकॉज नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विथ कि एक इतना एनरिच और इतना अच्छा एक डांस फॉर्म परफॉर्म कर सकते हैं. नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड कि वो सीख सकते हैं. हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वाई उसको क्यों छोड़ना. बिल्कुल मैम, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर. I really feel blessed and fortunate that I have got that opportunity to learn such a beautiful dance form. बिल्कुल मैम, ये तो अभी हमने देखा भी और हमने जाना भी कि कैसे आप यहाँ तक आई हैं. तो एक छोटा सा वाकया जो आप अपनी जर्नी से शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फेवरेट वाकया आज तक का. Incident you're asking? Favorite? इंसिडेंट हम. Okay. बहुत कुछ रहा है, यू नो, अप्स एंड डाउन, बहुत कुछ था. आई एम टेलिंग यू अ थिंग. मेरा एक प्रॉब्लम है. इट इज लाइक, बहुत जो मुझे करीब से जानते हैं, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स नोस, मेरे नी में प्रॉब्लम है. आई गॉट अ नी इंजुरी व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, 6th और 7th स्टैंडर्ड. उस समय मुझे एक नी इंजुरी हुआ था. तो उसमें वो पटेला जो होता है नी में, वो लिगामेंट उसका जेली रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं था, वो सूख गया था. तो बहुत कैल्शियम टैबलेट्स, ये वो ट्रीटमेंट्स, एवरीथिंग था. एंड मुझे तब डॉक्टर ने बोला था, यू नॉट मेंट फॉर डांसिंग, एंड आप दौड़ना मत, ये सब मत करना. बट मैंने कभी भी नहीं, तब मैं बिल्कुल भी छोटी थी, एंड मुझे इतना कुछ नहीं था, ओके मुझे डांस ही करना है बाद में जाके. देन उतना सीरियसनेस नहीं था, एंड आई केप्ट ऑन लर्निंग. जैसे जैसे वीकली वंस ट्वाइस क्लासेस होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, आई यूज्ड टू गो टू माय डांस क्लासेस. देन जब मैं बड़ी हुई, एंड देन डांस करना छूट गया, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग समवेयर एल्स. मेरे डांस स्कूल जमशेदपुर में है, तो उतना डांस होता नहीं था. देन कभी कभी बीच में प्रोग्राम्स होते थे, दैट्स ऑल. मुझे पता नहीं चला. Then it is recent thing 2000, sorry, it's not recent. मेरा जब प्रभाकर का जो मेन 6th ईयर का एग्जाम था, उसके ठीक 1 वीक पहले मुझे वो नी इंजुरी हुआ ड्यूरिंग प्रैक्टिस. देन वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आई कैन नॉट डांस लाइक दिस. अगर मेरे पैर में ऐसे फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो मैं व्हाट आई डू अगर मुझे ऐसे हुआ. देन आफ्टर 1 वीक वो पेन ठीक हो गया, एंड आई परफॉर्म.
डांस का एग्जाम भी दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से था। एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग, जब मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन के एज अ, मेरा करियर है अभी डांसिंग, व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग, तब मुझे ना बहुत, मतलब वो मुझे बहुत अंदर डर लगता है कि ये मेरा जो नी इंजरी है वो फिर से ना हो। तो ये मेरे माइंड में एक टेंशन रहता है। एंड सबसे मेमोरेबल थिंग ये है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं आफ्टर मैरिज आई बी डांसिंग, लाइक डांसिंग मेरा एक मतलब भरतनाट्यम आर्टिस्ट बन के मैं परफॉर्म करूंगी सब जगह, ये मेरा प्रोफेशन होगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज, मतलब उनके वजह से आज मैं हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे था जब फर्स्ट टाइम मेरे मदर इन लॉ ने मेरे लिए ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, इवन मुझे, मेरे पास घुंघरू भी नहीं था व्हेन आई गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू माय इन लॉज प्लेस। सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ने विद इन वन डे मुझे अरेंज करके दिया। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती। दैट इज अ वेरी मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। एक, मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इतना इजी होगा मेरे लिए। बिल्कुल मैम। इंडीड, जहाँ आज हम देख रहे हैं, जहाँ इतने सालों से ये प्रथाएं जो चली आ रही हैं, जो भी चीजें हैं, ऑल्दो कितनी पेट्रियार्की, कितना सब कुछ, but यस, how, hats off to your family, hats off to यस, you as well. आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई गॉट न्यू फैमिली लाइक दिस। मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एवरीबडी इज सपोर्टिव, एवरीबडी। And indeed, it is a blessing in itself. यस, इट इज अ ब्लेसिंग। Indeed, splendid, ma'am. Thank you. And like now that we know about your journey, अब जो धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो ये सबसे पहला प्लान जो आप जैसे स्टेज पे चढ़ती हैं कभी भी परफॉर्म करने के लिए, whenever you step on the stage, what is the first thing and first and last thing actually that clicks your mind कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? ओके, जब मेरा परफॉर्मेंस रहता है, सपोज आई गेट टू नो आई नीड टू परफॉर्म आफ्टर 3 days, आफ्टर 4 days, ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस। बिसाइड दैट आप ऑलवेज, आई थिंक कि क्या कर सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस एकदम अच्छा हो। बट व्हाट आई डू इज वेन एवर, ये मुझे मेरी मतलब मेरी डांस टीचर ने, जब भी मैं डरती हूँ मुझे क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, ये चीज मैं बचपन से फॉलो करती हूँ। ये मेरी डांस टीचर आंटी ने मुझे बताया है। whenever you enter the stage, just imagine you are dancing in front of God. Forget everything कि कौन बैठा है, कितने लोग हैं, क्या है, क्या होगा, कैसे मैं दिख रही हूँ। Forget everything and just imagine you are dancing in front of God. तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? When you are dancing in front of God, when you are dancing in front of Lord of Dance, उससे ज्यादा बीस और क्या लग सकता है when you are on the stage. एंड जब परफॉर्मेंस हो जाता है, मेरे माइंड में हमेशा ही आई आई प्ले आई मुझे आई फील सो फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि चलो मेरा अच्छे से परफॉर्मेंस हो गया। यू नो, फॉर एन आर्टिस्ट इतने सारे ऑडियंस के सामने फर्स्ट टू लास्ट एक परफॉर्म करना, एक प्रेजेंटेशन देना इज अ वेरी बिग थिंग। जब ये हो जाता है ना, ओनली एन आर्टिस्ट कैन अंडरस्टैंड वो कितनी खुशी होती है कि यू हैव प्रेजेंटेड समथिंग जो लोगों को अच्छा लगा। वो उनका वो फील करते हैं ना कि जो मैं प्रेजेंट, सी द डांस इज अ लैंग्वेज कम्युनिकेशन, राइट। बिल्कुल मैम। यहाँ अगर हम जो बताना चाहते हैं, हमारा एक्सप्रेशन, द इमोशंस विच वी वांट टू शेयर, कन्वे टू द ऑडियंस, वो अगर 100% हो जाए तो इससे अच्छी अचीवमेंट क्या हो सकती है एक आर्टिस्ट के लिए। तो ये एक चीज मैं फॉलो करती हूँ। जब भी मैं खत्म होता है मेरा परफॉर्मेंस, आई रियली फील ग्रेट कि चलो अच्छे से हो गया है, आई आई अचीव्ड समथिंग, वन मोर परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटेशन एडेड टू माय लिस्ट जो अच्छा था। एंड जब मैं स्टेज में एंटर करती हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड इमेजिन द लॉर्ड ऑफ डांस इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई नीड टू डू माय बेस्ट, प्रेजेंट माय बेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। This is such a holy mindset you go with on this stage. I've heard it for the very first time, to imagine the God himself in front of you and dance for them. As like, as they say, audience for you is like God. Yes, yes, of course, of course.
For an artist, spectators are the main thing. If there is no audience, आपको कैसे अच्छा लगेगा कि आपने इतने लोगों का दिल जीता है? जब आफ्टर परफॉर्मेंस जब लोग आके वो जस्ट दो शब्द बोलते हैं ना, प्रिया यू वर ऑसम, योर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत कीमती होता है. दैट इज बिल्कुल द मेन थिंग व्हेन एन आर्टिस्ट लुक्स फॉर, मतलब वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है. उस समय आप किसी को कितनी भी बड़ी कुछ दो ना, लेकिन वो अगर एक कॉम्प्लीमेंट ऑडियंस अगर आके बोले ना, आपका ये एक्सप्रेशन अच्छा था, ये पार्ट अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, तब वो जो अचीवमेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे अच्छा, कि मैं कुछ आई कन्वेड समथिंग विच आई वांटेड, जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो लोगों तक पहुंचा. दैट इज द मेन थिंग आई बिलीव. बिल्कुल मैम, ये बात तो एकदम सही है, बिल्कुल जैसी मानी जाए। और जैसा कि शुरू में भी हमने बात की इस लॉकडाउन फेज के बारे में, तो अब जो चलन जिस चीज का है वो है डिजिटल इंडिया, द ऑनलाइन मोड। तो हाउ हैज दिस अफेक्टेड कि आप जैसे क्लासेस लेती भी होंगी, क्लासेस करती होंगी, तो ऑडियंस, नो ऑडियंस एंड ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल अफेक्शन डिफरेंस जो हो जाता है, वो हाउ वुड यू डिफाइन इट? See, audience सामने बैठे हैं, and now the difference is somebody is watching you, right? यस मेरे लिए तो it was a very nice thing, because when we dance in an auditorium, there would be 150, 200, 300 audience, right? But when we are presenting something digitally and online, जो social media में when we are presenting it, there are many like lakhs and people are watching us. So उससे अच्छा क्या हो सकता है जब इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं. Yes, there were many difficulties during lockdown. Classes नहीं हो रहे हैं. We are not going. Dance classes not only कि हम सिर्फ we are going and dancing. It यस is place where we can feel good. मतलब ये लोग मिस करे हैं एकदम श्योर से. जी एंड या दैट्स द थिंग. एंड मुझे तो कुछ भी मतलब ऐसा ये नहीं हुआ है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड ले भी रही हूँ. इवन मेरे एक तो चीज बहुत अच्छी हुई है ड्यूरिंग लॉकडाउन. मैं अपने डांस क्लास जाती थी व्हेन मैं जब अपने होम टाउन जा रही हूँ, तब मैं अपने गुरुजी से मीट कर रही हूँ, डांस क्लास जा रही हूँ, उनसे सीख पा रही हूँ. एंड ड्यू टू कोविड, ये लॉकडाउन के वजह से शी स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. एंड मुझे वो इतना अच्छा लगता है, मैं वो क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, आई फील लाइक आई एम इन माई चाइल्डहुड एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हर. वो मेरे यस लिए एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है कि मैं फिर से वो सीख पा रही हूँ. अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये डिजिटल थिंग्स नहीं होते और क्लासेस नहीं होते, तो ये फिर से मेरे पास वापस नहीं आता ये मेमोरी. बिल्कुल मैम, everything has its own pros and cons, as they और like as it's always said. यस. Yes ma'am, indeed. And now that we're here to know about everything, but you said कि आप जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कुछ साल ऐसे थे जब आप नहीं डांस कर रहे थे, उस बीच में भी कभी आपको क्विट करने का सेंस आया कि अब शायद छोड़ दिया जाए? और अगर किसी को आता है तो वो कैसे उससे कोप करे? यस, बहुत बहुत बार मुझे ऐसा फील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम स्टडिंग नाउ. मुझे कभी भी, मैं एकदम ऑनेस्ट बात बोल रही हूँ, मैंने जो भी पढ़ाई की है, मुझे कभी कभी लगता है मैंने क्यों किया है. मैं अगर उस समय और पढ़ती या और डांस करती, तो वो मेरे लिए और अच्छा साल रहा होता. बट स्टिल एवरीथिंग इज डेस्टिनी, तो जो होना है वो हो गई. या मुझे बहुत बार ऐसे ऑफिस में बैठे हुए भी फील होता था कि क्या कर रहे हैं, आई शुड क्विट एवरीथिंग एंड स्टार्ट डांसिंग, जो मैंने अभी किया. ऐसा जब भी फील हो ना, मैं किसी को भी बोलूंगी कि यू डू इट, यू शुड फॉलो योर पैशन, वॉट एवर, मतलब आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहिए. एंड अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, देन आप अपने आप को ही अंधेरे में रख रहे हो. यू शुड फॉलो योर पैशन, आपका बेस्ट उसी से ही निकलेगा. अगर मैं कुछ और चाहती हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स, देन वो 100% मैं तो नहीं दे पा रही हूँ. मेरा जो एफिशिएंसी है वो कैसे उसमें आएगा. बट इफ आई एम डांसिंग एंड आई एम डूइंग समथिंग विच आई लव टू डू, देन वो मेरा 100% होगा. तो ऐसा बिल्कुल मुझे बहुत बार हुआ था क्विट करने का. बट देन ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग. देन एक ऐसा पीरियड आया जब मैंने डिसाइड किया. एंड यस, मैं कहीं शायद भटक गई थी इन बिटवीन ऑल दीज
years. And then my husband, उस उन्होंने मुझे लाइक वो बताया कि नहीं, उनके वजह से ही मैं शायद स्टार्ट की. देन उन्होंने बोला, सी एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग एंड यू आर डूइंग दिस अगेन, तुम उनको ही फॉलो कर रही हो. यू शुड डू योर बेस्ट, लाइक जो तुमको पसंद है. नोबडी इज ब्लेस्ड कि सबको ही सारे लोगों को भरतनाट्यम करना नहीं आता है. मे बी फ्यू आर देयर एंड यू आर वन ऑफ देम. सो यू शुड डू इट जो तुम्हें आता है. तो उनकी बात मैंने सोचा. एंड देन you know, ये आर्ट फॉर्म, कोई भी आर्ट फॉर्म, नॉट ओनली भरतनाट्यम, एनी क्लासिकल डांस फॉर्म, सिंगिंग, म्यूजिक, एनी आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट, पेंटिंग, व्हाटएवर, आप जो भी लो ना, उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है. यू नो, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे ही प्रैक्टिस किए जाते हैं, पता है, तब उनको जाके वो लेवल मिलता है. यू नो, सब वो सेटिस्फेक्शन होता है, यस आई प्रैक्टिस दिस मच. तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. एंड ऑल दोज इयर्स आई वाज नॉट डांसिंग, तो मुझे बहुत था कि अभी मैं कोप अप कर पाऊंगी, बिकॉज I can see, like in YouTube, Facebook, there are so many brilliant dancers, those who are dancing. मैंने सोचा नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस करना है. देन आई डिसाइडेड, ठीक है चलो लेट्स गिव अ ट्राई. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग घर में ही, अपने आप में जो मैंने सीखा था. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, देन थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस बनाना. मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था. आई गॉट ईच एंड एवरी, मतलब मुझे जो जरूरत थी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है. तो ऐसे ही मैंने फिर से शुरुआत की डांस करने की. एंड देन मैंने फिर सीखना शुरू किया. देयर इज कोई लिमिटेशन नहीं है ना लर्निंग का, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो. देयर इज नो लिमिट, एज लिमिट नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, दिस दैट कुछ भी नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो वही मैंने फिर से शुरू किया. डांस कर रही हूँ, मैं करती जाऊंगी. एंड मेरे विषय में, अगर मुझे कभी भी मेरा लास्ट में मेरा स्टेज में ही परफॉर्म करते हुए हो, तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती. बिल्कुल मैम, एक आर्टिस्ट के लिए तो हर एक नया दिन एक स्क्रैच ही होता है, हर वो ही जर्नी, हर वो ही डेस्टिनेशन. यस. ये सारी बातें मैं आप लोगों से धीरे धीरे सीख रही हूँ. हम सारे स्टूडेंट्स जो अभी आपको देख रहे हैं, इतना ग्रैटिट्यूड, इतना पैशन आपका अपने डांस को लेकर, अपने फॉर्म को लेकर इज लाइक ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच मैम. Like taking up the part of gratitude, taking up the part of willpower and determination. How Yes. do you think that like all of these can change an artist's life, putting it properly? You know, when you feel thankful and when you feel that I have not learned anything till now, then you can move ahead. आप आगे जा सकते हो. जब आप सोच लोगे ना that I have learned, अब हो गया है, डन, अभी मैं अपना करूंगी, देन उसी दिन आपका एंड हो गया है. आपकी आर्टिस्ट जो अंदर है ना, वो आगे और नहीं बढ़ सकती. So I believe we should be humble and thankful and हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए. यू नो, और ऐसा नहीं कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम गुरु, मतलब गुरु से ही हमें सीखना है, ऐसा नहीं है. मैं जब डांस सिखाती हूँ ना, मैं अभी भी बच्चों को सिखाते हुए कुछ तो अपने सीखती ही हूँ एवरीडे. तो ये चीज है, मैं ये बिलीव करती हूँ, बीइंग एन आर्टिस्ट आपको हमेशा थैंकफुल रहना होगा कि यस थैंक यू, यू टॉट मी दिस, आपके वजह से मैं ये आगे बढ़ी हूँ. ये नेचर तो आप में हमेशा ही होना चाहिए. जैसे आई ऑलवेज फील थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरे टीचर, गुरु पवित्र सर, जो मुझे इतना एफर्ट देते हैं, जो मुझे मतलब हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें जो मुझे एवरी डे एनहांस कर बताते हैं. एंड मैं अपने आप में इम्प्रूव करती हूँ. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. और जब आप सीखना छोड़ दोगे एंड हाँ ठीक है हो गया, एंड आई हैव लर्नड प्रैक्टिस सो मेनी इयर्स, अभी हो गया है, देन यू आर स्टॉप्ड. आप उससे आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हो. जी मैम, बिल्कुल वैसी ही बात है. बूंद बूंद से सागर बनता है. yes. अगर बूंदे डलनी कम हो जाएगी, सागर सूख जाएगा किसी दिन. हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सच है. आप जितना नॉलेज शेयर करोगे ना, आपका नॉलेज उतना गेन होगा. वट एवर यू नो, शेयर इट विथ एवरीवन. तो उससे अब मुझे जो पता है, इफ आई एम शेयरिंग विथ माय स्टूडेंट्स, माय कलीग्स, किसी के साथ भी मैं वो शेयर कर रही हूँ ना, तो वो मेरा नॉलेज कभी कम नहीं होगा,
वो और मेरे अंदर और बढ़ेगा और अच्छा होगा. तो बीइंग एन आर्टिस्ट आई फॉलो दिस थिंग्स. मुझे मैं ये बिलीव करती हूँ that being thankful and grateful to others, you can achieve things actually. Bilkul, ma'am. And now it's that moment we want to be thankful to you again. And I'll request you to present the another performance which you have prepared for us today. Yes. So my next performance is a Kirtanam. It is in praise of Lord Rama, and it is being choreographed by my Guru Pavitra sir. So I'm presenting that now. Okay, it's in Raga Gaula and Khandachapu Talam. Bilkul, ma'am. राजीव नेत्राय राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो नमो पशुपति महाधनुर् भञ्जनाय
पशुपति महाधनो अंजनाय नमो ईशतभागवराम हृदयगणनाय राघवाय नमो सौजन्यनिलयाय जानकीशाय राजीवनेत्राय राघवाय रावणाय संयमिनाघवरदाय संयमिनाघवरदाय अतुलितायोध्या पुराधिपाय अतरावणाय संयमिनाघवरदाय अतुलितायोध्या पुराधिपाय हितकदर्शी वेङ्कटेश्वराय नमो हितकदर्शी वेङ्कटेश्वराय नमो हिततवाविलिपाटि वेदरामाय हितकदर्शी वेङ्कटेश्वराय नमो विदधवाविलिपाटि वेदरामाय राजीवनेत्राय राघवाय नमो सौजन्यनिलयाय जानकीशाय राजीवनेत्राय राघवाय नमो सौजन्यनिलयाय जानकीशाय राजीवनेत्राय Thank you so much again, ma'am. Thank you so much. The dance performance was so very impressive. I was just, Thank you so much. I don't know. It was just so elegant. It was just so powerful. I could sense it. Thank you so much. Exactly. All the butterflies on the wall, on all the butterflies inside my stomach as well. Thank you so much, ma'am. And now that we move towards the end of our interaction of today, there are two final questions that I'd like you to answer. One of which is like, what do you dream to be, or where do you dream to be yourself after 5 years? Okay. See, there is no time. Like after 5 years, 10 years, there is like nobody has seen future. Yes. So I believe whatever you are doing now, live it now. Like enjoy the fullest, dance, give your best.
there's nothing like you cannot think like after 5 years I'll be dancing like that. I'll after 10 years I'll be doing that. But yes, I can ensure that from now onwards, if I practice 5 years, then my standard should raise. That would be my. I can see myself like whatever I'm dancing now. From that, at least 100%, not 50%, 60%, some percentage I'm dancing good. See, there is no there is no limit to thrive for perfection or like do your Anga Shuddha, like mudras. There is so many things to work on. Like you cannot become. I'm now a complete dancer. I practiced 20 years and now I'm a complete dancer. There is nothing like that. So the more you practice, you can improve yourself. So that's what I believe. And from now onwards, 5 years, yes, I'll be having more students so that I can share my knowledge to more people, and I'll raise Bharatanatyam dancers among like near me. So मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों को ये सिखाऊं और लोगों को इसके बारे में बताऊं. So that would be my goal कि after 5 years, 10 years मेरे बहुत सारे students हैं and they are doing best. वो भी भरतनाट्यम कर रहे हैं. बिल्कुल मैम, एक टीचर के लिए, गुरु के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. Yes. जी, इससे बड़ा सम्मान ना कोई है ना कोई होगा. जी मैम, और ये जो अब एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आज अगर आपको सारे ही लोग सुन रहे हैं तो व्हाट इज वन अल्टीमेट मैसेज दैट यू लव टू शेयर विद अस. It's a very important thing. इट इज मैम. इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज stay connected with your roots. Don't forget from where you have started. मैं ये हमेशा याद करती हूँ how I started my journey. I am really thankful to my parents, especially my mom and dad. मतलब उनको मैं कभी भी नहीं, मतलब कितना भी thank you, whatever I do for them, that would be very very less. You know the costume which I am wearing today, ये मेरे पापा ने बनाया है. So he supported me in every possible way, like Yes. weight karna, dance class le jana. So always stay connected with your roots. Don't forget your family. Always be grateful, thankful to God. Like you have got such a blessed life, and we are so fortunate that we have something. और भी लोग हैं ना जिनको ये opportunities नहीं मिल रहे. So always be thankful. एंड वन मोर थिंग, और जो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट मतलब आप किसी को हर्ट मत करो. मैं एक ही चीज बोलती हूँ, डोंट हर्ट एनीवन. आप आगे बढ़ो एंड लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. जो मैं फॉलो करती हूँ ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ. एंड फॉलो योर पैशन. आप अपने पैशन से अलग मत हो. इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग यू लव, देन यू आर चीटिंग ऑन योर सेल्फ. You should follow your passion. ये मेरा मैसेज रहेगा सारे टीनेजर्स और जो छोटे हैं मेरे से. मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज फॉलो योर पैशन. आप बहुत फ्लरिश कर सकते हो. इफ यू लव समथिंग, डू दैट. बिल्कुल मैम. This is what we can like conclude the mantra of life today. Yes, yes. Always follow your passion. And और एक चीज मैं फॉलो करती हूँ, फॉलो योर हार्ट. अगर आपको आपका दिल बोल रहा है ये मुझे करना चाहिए, देन डोंट थिंक, आप करो. मैं ये फॉलो करती हूँ. हाँ, मुझे जब लगता है ये मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बार डिस्कस करती हूँ. इवन अगर थिंग्स है, कुछ मैं करने जा रही हूँ, मेरे बहुत ही क्लोज कुछ लोग हैं जिनसे मैं पूछती हूँ एक बार मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट फाइनली ना मुझे लगता है कि अपने दिल की सुनो. अगर तुम अपने दिल की सुनोगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही आगे. दैट्स व्हाट आई. जी मैम, थैंक यू सो मच. आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना इतना समय निकाला. और I forgot to compliment you in the beginning. You look very beautiful today. Thank you so much. Thanks to my father that he made this costume. Thank you so much for joining with us today. And we would love to see you in the university as soon as it opens.
we welcome you. On the behalf of complete family of Lovely Professional University, welcome you to the university. I And would love to come. Thank you so much. thank you, ma'am, and we hope to see you soon. Thank you. Have a great day ahead, ma'am. So And much. I Till love then, to Merry thank, Christmas, Happy New Year. Please enjoy and be safe. thank you. Same to you. And more grace to your family and you as well. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Good night, everyone. Good night, everyone.